was the very first session, and the course happens to be database management system. And I believe for your generation, I should not speak much about the importance of the data. And then you will be finding a lot many buzzwords, and then in every day sessions you may find that okay, the whole system now, IT, is revolving around the data, and it is precious thing, it is new oil. And okay, if you are able to turn data into information, and information into insight, and insight into wisdom, then obviously okay, you'll be able to succeed in your path of aspiration. So these are all the buzzwords, and that is the reason when data is so much important. So managing a data obviously becomes utmost importance, and that is where the whole system, the course rather, revolves around. So from the name, also we can easily make out the database management system obviously is meant for managing the database. So and in that sense we are absolutely right. And these are some funny statements. Okay, you can ignore this. Itni shakti hame dena data, aisa some song you might have heard about. Okay, listen. So now it is gradually okay, it is changed to itni shakti hame dena data. My dear friends, because day by day, and the disruptions caused by artificial intelligence, machine learning, deep learning, okay, and so on and so forth, and arrival of Chat GPT, and the corporate basically getting into fierce competition, and then decision makers, they are just okay, seeking for some sensible and useful data for them to take a right decision at right time, for them to succeed basically as compared to their competitors. So this fierce competition is happening from long back, and it is part and parcel of every corporate now. So for them to take a decision, data plays very important role, because okay, it contributes in keeping your business wheels turning. And this that is the reason I believe this is one of the most fundamental course as far as computer engineering, IT, and those who are looking for okay, the job opportunities, career ahead in the field of an IT. And then we don't know basically right now, okay, there is no point in predicting, but then you will be very much influenced by the data component, and artificial intelligence, and generative AI, and this and that. So this topic being a very first topic, normally okay, we'll be touching some fundamental aspects, and out of them you may find some of them already has gone redundant, but then okay, can't help. Basically okay, we believe in just touching the historical perspective, understanding history, understanding what used to be a system prior to the arrival of databases and database management system on a faster track. Obviously we'll not try to get into much details. So let me tell you that okay, before the arrival of the database management system, this concept, earlier the approach was to maintain the data in form of an files. And that approach normally okay, there is a tendency of calling it as a traditional file processing system, yeah, traditional file processing approach. And in this traditional approach, and it doesn't mean that okay, it has gone obsolete in today's day. In many situations, okay, when it comes to maintaining a data, and especially in documents and all those, typically speaking in form of an word document, we and even if it comes to an Excel sheets, we try to maintain it in terms of an files. But then in those days, even typically speaking, the business data they used to maintain in the files. And then that is where we are talking about an old age system of file processing system. We call it as a file processing system. And typically speaking, if I am supposed to comment on some very characteristics of this typical file processing system, I will say that in this file processing system, every application is regarded as an independent application. This used to be very characteristic of the file processing system. हर एक एप्लीकेशन को अलग अलग समझा जाता था. इसका मतलब यह है
कि कॉर्पोरेट के अलग अलग प्रोसेसेस है, अकाउंट डिपार्टमेंट एक प्रोसेस फॉलो करता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक प्रोसेस फॉलो करता है, ओके, देन सेल्स डिपार्टमेंट एक प्रोसेस फॉलो करता है, और ऐसे सारे बहुत सारे प्रोसेसेस है, उन्हें अपना अपना डेटा चाहिए। तो अर्लियर अप्रोच क्या था कि भाई हाँ, मार्केटिंग वाले तेरा प्रोसेस जो है ना, तेरे लिए एक सिस्टम अलग से बनेगी, और तेरे सिस्टम वाले तेरे तेरे को जो डेटा लगता है वो अलग फाइल्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। Accounts wala, we will maintain your data what you want in separate set of files, and those files will be regarded as if it lies in your custody, they belongs explicitly to you, ये तेरे फाइल्स है और तू तेरा संभाल, दिस काइंड ऑफ एन अप्रोच। सो हर एक एप्लीकेशन एक इंडिपेंडेंट एंटिटी था। तो बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक, और इसका मतलब क्या है कि जैसा यू विल फाइंड दैट ऑन दिस स्क्रीन आई एम शोइंग यू कि एक टिपिकली स्पीकिंग एजुकेशनल एनवायरनमेंट में लेट अस अज्यूम दैट देयर इज एन रजिस्ट्रार्स ऑफिस, और उसमें कुछ एकेडमिक एप्लीकेशंस चल रहे हैं, और एकेडमिक एप्लीकेशन के कुछ जो बंदे हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं सारे प्रोसेसेस, उन्हें कुछ डेटा चाहिए, तो ये सारा डेटा अलग अलग फाइल्स में रिकॉर्ड करके उनके पास ऑब्वियसली ओके एप्लीकेशन विल बी परफॉर्मिंग operations on this, something like an you need to have an employee specific data and student data, कितने कोर्सेस ऑफर किए जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन किसने किसने कहाँ किया है, all this stuff, okay? So now when it comes to, and if you just think of basically okay a situation, I want you to think about this. Let us assume that this we are talking about an era just at the verge of the beginning of automation. इसका मतलब है कि अभी धीरे धीरे कंप्यूटराइजेशन हो रहा था, ऑफिसेस में ऑटोमेशन हो रहा था। तो ये दौर में टिपिकली स्पीकिंग क्या होता था कि जो बंदे रहते थे एप्लीकेशन डेवलपमेंट वाले कोडर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, दे आर सपोज टू ऑब्वियसली फर्स्ट टॉक अबाउट the role players of an registrar office per se, just for an example, and then understand कि उनका मैनुअल सिस्टम क्या चल रहा है, और वो मैनुअल सिस्टम को समझ के आफ्टर हैविंग ओके लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ इंटरव्यूज and understanding the system, they will arrive upon a conclusion that yeah, now we are in position to develop a software application which will be serving okay and facilitating the registrar's office, and for this application to uh, facilitate registrar's office, we should have these many files, something like this. So once this decision happens, so they will start coding, they will develop an application, they will do rigorous testing, and after rigorous testing, once an approval is obtained, then they will deploy this academic application, और ये रजिस्ट्रार वाले ऑफिस वाले जो बंदे थे वो खुश हो गए, उनको मजा आ रहा है अभी, ओके, उनका काम काफी हल्का हो गया, something like this kind of an situation. Are you getting this? तो सेम स्टोरी अकाउंट डिपार्टमेंट वाले भी अपना कुछ कर रहे हैं, उन्हें भी ऑटोमेशन करना है, ये एक अलग एप्लीकेशन डेवलप किया जा रहा है। यहाँ जो बंदे लगे दे मे बी डिफरेंट फ्रॉम okay those who have developed this academic application, maybe same, maybe different, we don't know, something like this. So this is basically a typical characteristic of a file processing system. So every application is regarded as an independent application. Every application will have its own set of files in which the data related with that application will get recorded, and as and when it is required to be retrieved, it will get retrieved and the operations will be performed on that data. A typical environment. And because of this, okay, they started listening to the music and okay kind of a difficulty, and normally okay there is a practice of calling them as a potential drawbacks of file processing system, and these all drawbacks are because of the very characteristics of obviously file processing. एक बड़ा drawback उस दौर में ये था कि रिडंडेंसी हो रहा है। डेटा रिडंडेंसी का मतलब है कि वही वही डेटा अगर अलग अलग जगह रिकॉर्ड करने की नौबत आती है, इफ द सेम डेटा इज रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड एट different storage locations pertaining to the same organization, then it will consume a memory and this will lead to a data redundancy. But then memory consumption is a very lighter issue
but the major consequences they used to face is something called as data inconsistency. Let me talk about that also. So now what I'm trying to tell you in this case, data redundancy कहाँ से आता है कि एम्प्लॉय डेटा एकेडमिक एप्लीकेशन के लिए भी चाहिए, स्टूडेंट डेटा भी चाहिए, तो उनके फाइल में ये डेटा ऑलरेडी है। अकाउंट्स जो डिपार्टमेंट है उनको भी एम्प्लॉय डेटा चाहिए, भाई किसका सैलरी कितना करना है, स्टूडेंट किसने फीस भरी है, ये वो सब कुछ, तो उन्हें भी एम्प्लॉय डेटा चाहिए, उन्हें भी स्टूडेंट डेटा चाहिए, तो उनके फाइल्स में भी ये डेटा पड़ा है। उनका फॉर्मेट अलग हो सकता है। द वे अकाउंट्स डिपार्टमेंट वांट टू perceive the employee data, student data need not be same as that of what basically registrars or academic application is looking for. Their view may be something different, but the matter of the fact is कि ये डेटा अलग अलग फाइल्स में डुप्लीकेशन हो रहा है, और वो डुप्लीकेशन इज नथिंग बट द रिडंडेंसी, और मेमोरी वेस्टेज होता है। अभी किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, मेमोरी वेस्टेज होता है। लेकिन मेमोरी वेस्टेज से भी सबसे सीवियर प्रॉब्लम उस दौर में ये था कि बिकॉज ऑफ दिस रिडंडेंसी दे यूज्ड टू फेस अ वेरी सीरियस इशू which at any cost cannot be tolerated and which is called as a data inconsistency. जो data inconsistency का मतलब ये है कि भाई if the same piece of data is recorded at two different places, storage locations, but if they are not matching then it will lead to an inconsistency. इसका मतलब है कि अपना जो एकेडमिक एप्लीकेशन है वो स्टूडेंट का डेटा है, उसके हिसाब से ओके स्टूडेंट एलिजिबल हो गया, एकदम मस्त फ्लाइंग कलर से पास होके वो बंदा थर्ड ईयर में चला गया, और अभी उसे एडमिशन लेना है, और ये अगर जानकारी इधर अकाउंट्स एप्लीकेशन के पास पहुंची नहीं है तो उसके हिसाब से स्टूडेंट अभी भी सेकेंड ईयर में है, and then they will not obviously take and follow up of an fees hand. Okay, from I'm talking about an corporate perspective, because tuition fees happens to be one of the most important revenue for the non-aided educational institutes, and the whole show runs on this, so they cannot afford to just be casual about this tuition fees component, and they are not supposed to be also. So what I'm telling you कि यहाँ वो clear हो गया, यहाँ इन्हें पता ही नहीं है, so this is just one example I'm telling you, and then this is basically very serious problem, okay, and that is called as a data inconsistency, because if the same piece of data recorded at two different places or multiple places, if no longer agrees, then it is called as a data inconsistency. Got the point? Hi friends, am I audible? Hello? Okay. Yes, sir. Yeah. So what I request you all guys is please in between, please keep responding. So otherwise, I'll start feeling very lonely. So I'm not habitual of that. In between, if I'm just asking you, am I audible, or please keep responding. That is my request. Are you okay with this? Shall we proceed? Rohan, Ameya, can we proceed now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. Chalo, thank you. So this is something about and data, and you are obviously okay. You enjoy the freedom of asking me the questions, so that will lead to more interactive sessions. और एक डिफिकल्टी उस दौर में ये थी कि यार एक्सेसिंग डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, और ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगता है कि डेटा है और फिर भी एक्सेस में क्या प्रॉब्लम है। तो उसमें प्रॉब्लम ये था कि अगर डेटा है और एप्लीकेशन प्रोग्राम अगर ऑलरेडी बन चुका है, एप्लीकेशन डेवलप हो चुका है, so something like this, okay, agar let us assume that we are talking about an scenario, there exists
one department, and let us assume that, okay, exam department belonging to the institute, and then the exam controller of the university or the institute, he decides to automate a system. This is, I'm taking you, okay, like 4 decades at least back, but think of this situation, okay. And he decides, no, yeah, this manual work is no longer fruitful, so we should have something called as an automation. और ऑटोमेशन करना है तो ये एक बाहर वाली एक एजेंसी आ जाएगी, ओके. एक एजेंसी कम्स और कंपनी कम्स, and which says that, okay, we take a responsibility of doing this kind of an automation, and they will do all sort of study and this and that, okay. And finally they will start. Now what I'm telling you, when ये सॉफ्टवेयर वाला जो गैंग है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का, ये जब डेवलपमेंट कर रहा है इधर, ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहा है, उनका काम क्या है, एक एप्लीकेशन डेवलप करके, should this application should cater to all kind of services expected by the exam department, ऐसा ऐसा सब कुछ हमारी बात हो रही है. तो ये जो बंदे, ये जो गैंग है, तो ये अभी उनका जो एंटीसिपेशन रहेगा कि भाई ये एक बार मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप होने के बाद में ये जो एग्जाम सेक्शन के जो बंदे हैं, those who are working, the clerical section, and maybe the exam controller, and all those belonging to that department, what kind of queries they will have, and they will be submitting those queries to my software application, and my software application obviously will fetch the data as per the request and will satisfy their requirement. Are you getting this situation? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, अभी yes, प्रॉब्लम क्या था कि ये ऐसे कोई भगवान तो नहीं है बेसिकली, दे आर नॉट द सुपर ह्यूमन बीइंग फॉर देम टू एंटिसिपेट ऑल पॉसिबल क्वेरीज दैट मे अराइज इन द फ्यूचर. तो ये अभी भी होता है बेसिकली, ऐसा सब कुछ सारे क्वेरीज नहीं हो सकते. तो अभी ये डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा का मतलब ऐसा है कि नाउ ये एग्जाम सेल का जो सिनेरियो है, ये बंदा बोलता है कि यार मुझे, लेट अस अज्यूम दैट, ओके, दिस इज वन ओनली वन सिचुएशन आई एम टॉकिंग अबाउट. आई वांट only the details of those who have appeared for the exam. Let us assume this is very appears to be very funny, and then, okay, let us assume that the students, those who have appeared for the exam for 3 subjects, uh, M, physics and chemistry. Obviously this is not applicable now for you guys, but just, okay, maths, physics and chemistry. And exam cell is very much interested in understanding the marks what they have scored, whether they are in ascending order or descending order or not, for some funny reason, okay. I'm just giving an example. So it is something like this, okay. All those who are getting who got the mark something like this. तो मैथ्स में 71 मिला, फिजिक्स में 72 मिला, इसमें 73 मिला, या तो 51 मिला तो 52 मिला तो 53 मिला, 98 मिला तो 99 मिला तो 100 मिला, ऐसा ऐसा फॉर सम रीजन ऐसा उनका क्वेरी है. और ये जो बंदे थे ना जिन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, वो लोगों ने, यार ये ऐसा हो ही नहीं सकता क्वेरी, ये थोड़ी ना कोई पूछने वाला, ऐसा एंटीसिपेट ही नहीं किया था. एंटीसिपेट नहीं किया था तो तेरे सॉफ्टवेयर में वो प्रोविजन ही नहीं है, ऐसा कुछ हैंडल करने की एबिलिटी नहीं है. तो ऐसे जब स्पर ऑफ द मोमेंट क्वेरीज आती थी, स्पर ऑफ, वी कॉल देम एज एन, okay, spur of the moment kind of an queries. Please bear with me because this my pad is okay, behaving very surprisingly. So spur of the moment की बात हो रही है, तो ऐसे क्वेरीज का सपोर्ट नहीं था. मींस इसका मतलब क्या है, ये डेटा तेरे फाइल में है लेकिन उसको एक्सेस करने का प्रोविजन मेरे सिस्टम में नहीं है, इसलिए डिफिकल्टी आ रही है. तो इसे डिफिकल्टी ऑफ एक्सेसिंग, डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा कहा जाता था. और एक बात थी, और एक पोटेंशियल ड्रॉबैक था डेटा आइसोलेशन का. डेटा आइसोलेशन का मतलब है कि ये डेटा आइसोलेशन प्रॉब्लम इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ न्यू एप्लीकेशन विच इज अबाउट टू गेट डेवलप. ये फ्रॉम द, अरे यार, द पर्सपेक्टिव ऑफ,
new application. Now, okay, and I'm having a faith you still uh, you are able to read what I'm trying to, uh, and there is so much and so much of okay silly things happening here on the screen. I believe from the perspective of the new application which is getting developed, are you able to understand this? Yes, sir. इसका मतलब ये है कि भाई मुझे अभी नया नया ऑर्डर मिला है। अभी तक एग्जाम सेल का ऑटोमेशन हो गया, एकेडमिक सेक्शन का हो गया, हो अकाउंट्स वाले का हो गया, ओके। और अभी स्टोर्स है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टोर्स होता है, वो जो सब पूरा इन्वेंट्री देखता है, उन्होंने भी कहा यार मेरा भी कर दे यार, ओके। और वो अपना मैनेजमेंट ने भी डिसीजन लिया कि इनका भी कर दो, चलो इनको भी चाहिए अभी एक एप्लीकेशन। तो अभी ये जो नया एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है, तो उसको भी डेटा लगने वाला है। एंड देन द डेवलपर, इवन इफ दे रियलाइज दैट यार बॉस मुझे जो डेटा लग रहा है, यार इट्स ऑलरेडी देयर इन द फाइल्स, बट द फाइल्स बिलोंग्स टू सम अदर एप्लीकेशन। एंड फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच में द वेरी कैरेक्टरिस्टिक इज दैट एवरी एप्लीकेशन इज एन इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन। तो वो जो मुझे डेटा चाहिए वो है, लेकिन इट मे नॉट बी इन द फॉर्मेट व्हाट राइट नाउ आई वांट। सो what happens is that the data appears to be, even if it is there existing serving the purpose of some other application, it appears for me when I'm now okay but developing the new application for me, the data appears to be isolated. And then okay, they were left, the developers were left only with the one option, and the option is now यार छोड़ना, तू तेरा फाइल्स बना वापस और वही वापस डेटा डाल दे इसमें। अभी वापस डेटा डालेगा तो इट इज बेसिकली ओके, गोइंग बैक टू द स्क्वायर वन हो जाएगा कि वी आर गोइंग बैक, एंड देन ओके वापस दिस न्यू डेटा विल एड अप टू द रिडंडेंसी, more the redundancy, more the chances of okay data inconsistency, because the updates happening on one piece of data and simultaneously they are not happening on remaining pieces of the data, then this will create a lot of trouble, okay. So these were some of the problems, and then there are few more, and this sometimes okay is a typical question of what are the file processing approach ka disadvantages, and how DBMS overcomes these many potential drawbacks. So we are discussing them. तो और एक प्रॉब्लम है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। इंटीग्रिटी का मतलब है डिग्री ऑफ करेक्टनेस। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो होते हैं कि दे आर इम्पोज्ड बेसिकली ओके टू एंश्योर दैट द डेटा ऑलवेज रिमेन्स इन द कंसिस्टेंट स्टेट। कंसिस्टेंट का मतलब है करेक्ट स्टेट। अच्छा, ये जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट का मतलब है कुछ लिमिटेशन डाले जा रहे हैं। तो ये जो कंस्ट्रेंट्स है वो तो पॉलिसी पे डिपेंड करते हैं। जैसा अभी मुंबई यूनिवर्सिटी का पॉलिसी अगर है कि भाई तुझे तुझे ना अभी 80 मार्क्स का क्वेश्चन, फाइनली एंड सेमिस्टर एग्जाम 80 मार्क्स का है, 80 मार्क्स का। अर्लियर वो 100 मार्क का हुआ करता था, ओके। अभी परसेंटेज नहीं, बेसिकली ओके ग्रेड सिस्टम आ गया, तो ये चेंज होते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट अगर 40% पासिंग है, तो 80 मार्क का अगर एंड सेमिस्टर एग्जाम है तो 32 मार्क्स का तेरा पासिंग है। तो यू शुड गेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 32 फॉर यू टू गेट थ्रू द एग्जाम, यस और नो। तो ये सारे कंस्ट्रेंट डाले जाएंगे। Logically speaking, is it not after being a part of semester 4 and above, is it not you can easily make out here, logically speaking, there is something called as an if and else kind of an sequence playing a role. What is your say about this? Yes, अगर sir. मगर अगर मगर की बात हो रही है तो यार इफ एंड एल्स है। अगर तुझे मार्क मिले इक्वल टू 80 तो तू एकदम ओके धनवान। और तू अगर तेरे मार्क्स है ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो तू फर्स्ट क्लास, या उसके ऊपर है तो डिस्टिंक्शन, समथिंग लाइक दिस। सो इफ एल्स है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट ये ना इंटीग्रिटी जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जो लिमिट होते हैं, दे आर नॉट स्टैटिक कि एक बार तय कर लिया तो लाइफ लॉन्ग वही हो गया, नहीं होता है, डायनेमिक है। मौसम के हिसाब से चेंज होना पड़ता है।
and okay, as per the need and requirement, looking at, they keep taking the decisions. So अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, अभी तक एकदम रिजिड था इंजीनियरिंग प्रोग्राम, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि यार फ्लेक्सिबिलिटी दो स्टूडेंट को, लेट हिम आल्सो परस्यू बेसिकली ओके व्हाट ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन एंड हिज पैशन, हर पैशन, ये सारे ये चेंजेस है, डायनेमिक है। तो अभी जो कंस्ट्रेंट्स पहले से तय हो चुके थे, और अगर वो चेंज होते हैं, तो अभी क्या है कि ये जो आर्किटेक्चर, लॉजिकल आर्किटेक्चर की मैं अगर बात करूं, तो माय डियर फ्रेंड्स, आई विल शो यू, लॉजिकली स्पीकिंग, ये ऐसा खेल चल रहा है अभी देखो, कि ये तेरा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। हाँ, यहाँ फाइल्स सारे पड़े हैं, चलिए यहाँ बताता हूँ। सो ये सारे फाइल्स है, और तेरा एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो अपना ये फाइल्स के साथ डील कर रहा है, और जो यूजर्स है रजिस्टर ऑफिस के, वो यहाँ है। सो दे विल बी यूजिंग दिस एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू एक्सेस द डेटा। सो ये यूजर्स है, अभी इन्हें भूल जाओ, ये जो है, सो ये यूजर्स है, दे आर यूजिंग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इन टर्न विल try to fetch the data from files as per the request generated and will keep providing the data to the users. Are you getting this? Yes, sir. अभी अभी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि तेरे कंस्ट्रेंट्स लिमिट्स चेंज हो गए, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, या सिर्फ लोअर या सिर्फ अपर, कुछ डायनेमिक चेंज करना है। तो अर्लियर इन फाइल प्रोसेसिंग देयर वाज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट ओनली बट टू रिफ्लेक्ट दिस चेंजेस डायरेक्टली इन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब है वो सॉफ्टवेयर कोड जो है, वहां जाके तुझे चेंज करना पड़ेगा। तो चेंजिंग द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कम्स विथ प्राइस टैग, ऐसा नहीं होता है फुकट, समझा ना? तो इफ यू चेंज द रिक्वायरमेंट, then the organization is required to pay it, because our software developers will say, "Yeah, now you are changing the policy. If you want me to update the software, you need to pay." Yes or no? So for every such change, when the integrity constraint changes, so change, applying a change in the software application, okay, was compulsory because no other option left. So that was the problem, integrity problem. And if it is not done, then obviously okay, it will lead to an inconsistency का मतलब है कि पहले 100 मार्क का एंड सेमिस्टर एग्जाम होता था, और पहले पासिंग फिर ओके ग्रेटर देन इक्वल टू 40 था, और 40 के नीचे 3 मार्क का ग्रेस वगैरह छोड़ दो, तो 40 के नीचे गया बंदा तो गया फेल, और यहाँ 80 मार्क्स का हुआ, तो बंदे को ओके लेट अस अज्यूम दैट 35 मार्क्स मिले। तो और ये यहाँ जो अगर चेंजेस नहीं लाए सॉफ्टवेयर सिस्टम में, तो बोलेगा यार 35 भी फेल है, और ये बंदा बोलेगा यार मेरा तो सर ने बताया था कि भाई 32, या सिस्टम ने मुझे जो अपडेट किया है। तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स, तो इन्हें इंटीग्रिटी प्रॉब्लम कहा जाता है। ऑटोमेसिटी प्रॉब्लम का मतलब है कि एक एक ट्रांजैक्शन एक तो होना चाहिए सक्सेसफुल, नहीं तो नहीं होना चाहिए। तो इट इज बेसिकली ओके, नॉट, so the change which is happening should happen or should not happen, बीच वाला खेल नहीं चाहिए। So I will be okay doing the brainstorming on this atomicity problem later on, but this is a very typical example which normally is quoted, and you'll find it in many textbooks and reference books. Let us assume that okay, we are talking about an reservation, like an एयरलाइन रिजर्वेशन की बात हो रही है, हमें कहाँ जाना है, फ्लाइट लेना है, तो हमें रिजर्वेशन करना है, okay, बुक करना है, फ्लाइट बुकिंग की बात हो रही है। तो फ्लाइट का अपना अपना कैपेसिटी है, 180 कैपेसिटी है उसका, और जैसा रिजर्वेशन होता है, तो ये कैपेसिटी सक्सेसफुल ऑब्वियसली, तो आपने पे भी कर दिया, एंड देन ओके ग्रीन सिग्नल गिवन, तो ये कैपेसिटी विल गेट रिड्यूस्ड, समथिंग लाइक अभी तक अवेलेबिलिटी 180 सीट्स की थी, और तूने 5 टिकट्स कर दिए तो 175 के हो गए।
Are you getting this? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें इसमें क्या उस दौर में ये प्रॉब्लम ये था, उस दौर की बात हो रही है कि थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच की बात। उस दौर में प्रॉब्लम ये था कि अगर ये attempt to do the booking if it is happening from multiple sources. So there is a possibility that, okay, before the update is happening on this 180, originally, let us assume that originally यहाँ से 5 बुकिंग आ गया और ये अपना सिस्टम ये 5 को इफेक्ट देने के लिए काम कर रहा है, ओके, एंड बिफोर इट इज गिवन एन इफेक्ट अभी तक 180 ही चल रहा है। या तो आई टेक एन एक्सट्रीम केस फॉर वी टू बेटर अंडरस्टैंड। अभी ना 5 सीट्स ही बचा है, ओनली लेफ्ट इज 5, और यहां से 4 की रिक्वेस्ट आती है, यहां से 3 की रिक्वेस्ट आती है। आर यू गेटिंग दिस? तो ये 4 का रिक्वेस्ट वाला ट्रांजेक्शन इसको अभी इफेक्ट देने का काम चालू है, और तब तक ये 3 वाला रिक्वेस्ट को भी टैकल किया जा रहा है, उसको इंटरसेप्ट किया गया और फिर उसको प्रोसेसिंग में ले लिया गलती से, या कुछ सिस्टम का प्रॉब्लम ऐसा सोचो। तो ये जो 3 वाला रिक्वेस्ट आता है वो देखता है यार कितने सीट बचे, तो बोलेगा 5। 4 वाले ने भी देख ले 5 सीट खाली है, तो फिर दोनों का भी बुकिंग अगर हो जाता है फॉर सम रीजन, दोनों को भी अगर ग्रीन सिग्नल मिल गया, तो इज इट नॉट दिस विल लीड टू एन क्यूओस, because on the day of takeoff, when you are okay, like about to start a journey, तो वहां प्रॉब्लम आ जाएगा कि टोटल 7 people will turn and only 5 seats will be, only 5 out of them will have an opportunity, and how they say how the airline system will manage, that is different story, but this is a problem, okay, the business problem. So that should not happen, and that used to happen rather in file processing system for some reason. Got the point? एंड दैट इज कॉल्ड एज एन ऑटोमिसिटी प्रॉब्लम। तो एक तो इसका मतलब यह है कि तू 4 का निपटा रहा है ना, तू 4 का पहले निपटा ले, उसको पूरी तरह से कर ले, नहीं तो कर ही मत। तो 4 का तू पूरी तरह से करेगा इफेक्ट, तो ये 5 जो सीट की बात हो रही थी कि इतने बचे थे, अभी 4 को ग्रीन सिग्नल देने के बाद में इसका मतलब है कि नाउ दिस विल गेट रिड्यूस टू व्हाट, दिस विल गेट रिड्यूस टू ओनली 1. And then when you try to entertain the request coming from this side 3, कि वो बोल रहा है मुझे 3 बुकिंग चाहिए, तो उसको डिनायल मिलेगा क्योंकि 3 चाहिए लेकिन है तो एक ही, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो दैट काइंड ऑफ एन प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज एन ऑटोमिसिटी प्रॉब्लम। अभी और एक है कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज। तो सेम स्टोरी बेसिकली, ओके, कि इफ मल्टीपल यूजर्स आर अलाउड टू हैंडल access, gain and access to the piece of data, same resource, so then this if it is not properly handled, if there is no support for dealing with the concurrent access, then it will lead to an anomalies, and this also can be regarded as a kind of an example for an anomaly. Got the point? Yes. And then security problems, in those days the severity was not much, but then okay, that was used to be regarded as a security problem, and these days security is obviously okay, at the highest level, and it is at the epitome. So अगर सिस्टम में सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है, तो देन देर इज वांदा, आई मींस प्रॉब्लम है कि some intruder may play a mischief and may destroy and will be costing to the organization. So security problems भी हुआ करते थे अगर सॉफ्टवेयर सिस्टम में वो मेजर्स लिए नहीं गए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे, फेस किए गए। So we normally prefer to call them as potential problems. So obviously they are likely to appear if your software development, which we are talking about, the applications which are getting developed for satisfying the requirement of a typical department, if these during the development of the application, if this
all aspects are not very seriously attended, then they used to face the problem. But then the chances was great, so we call them as an potential drawbacks. Okay, and then they normally, okay, we are of the opinion that that because of these problems, rather these problems has prompted the development of a new concept called as database and database management system. तो टिपिकली स्पीकिंग, ओके, व्हाट इज ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और उसके ड्रॉबैक्स क्या है, बताओ रे भाई। ऐसे सारे क्वेश्चंस ओके आ सकते हैं। गॉट द पॉइंट। Yes, sir. और रही बात अभी, जब हमने कह दिया कि वो ड्रॉबैक्स को निपटाने के लिए एक नया कंसेप्ट डाला गया, रियलाइज किया गया, व्हाइट पेपर लिखा गया। ट्रिब्यूट इसलिए मैंने डाल के रखा है स्लाइड में कि ऑब्वियसली ओके, जनरली 1970 का सिनेरियो है कि EF Cord publish an important paper to propose use of relational database model, and relational database model, ये जो पेपर था पब्लिश किया गया, and then okay, it was picked up by all those corporates to that extent that they develop the database management system, okay, looking at this relational model. And then it has gained so much and so much of an importance, and it is still into an existence, and almost basically okay, uh, I believe 54 years. So still our DBMS is very much and very much. And now we are talking about okay, new systems coming, and MongoDB, which is normally okay meant for dealing with the big data analytics, and Cassandra is there, SQLite, a lot many okay, JSON data models are there, MySQL, and these are traditional MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server. So all these mainly PostgreSQL, and these are based on relational database management system, relational model rather. So व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस का मतलब है कलेक्शन ऑफ डेटा है। और जनरली एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन में हम लोग ऐसा कहते हैं कि यार उसको सिर्फ कलेक्शन मत कह, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा कह, थोड़ा अच्छा लगता है, तसल्ली होती है। ओके, व्हाई वी कॉल इट एज एन रिलेटेड डेटा? बिकॉज तेरे सिस्टम में जो डेटा तू डाल रहा है, वो भाई वो उसका कोई सेंस बनना चाहिए, नहीं तो कुछ भी उठाएगा और पटकेगा उधर, ऐसा थोड़ी नहीं चलता है। सो okay, random assortment of data cannot be regarded as a database. So if you are recording the data, it should be with some intention, it should have some relation. Okay, so that is the reason this related data is normally we prefer, you'll be writing down when it comes to the definition of and textbook definition of a database, which is a collection of related data, and it represents some aspect of the real world. रियल वर्ल्ड का मतलब है वो एक्चुअली कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, मिनी वर्ल्ड है। जो कॉलेज के लिए अगर तू डेटाबेस सिस्टम डिजाइन कर रहा है, तो कॉलेज के हिसाब से जो जो डेटा चाहिए वो उसमें होना चाहिए, वो दैट इज रियल वर्ल्ड इज अ कॉलेज। देन इन दैट केस इफ यू आर डूइंग इट फॉर सम ऑयल इंडस्ट्री, तो ऑयल इंडस्ट्री के हिसाब से जो भी डेटा उनको लगता है, बाय कंसिडरिंग ऑल द डिपार्टमेंट्स, एंटायर प्रोसेसेस, ओके, तो उनके हिसाब से जो उनके पर्सपेक्टिव से जो डेटा है वो उनके लिए रियल वर्ल्ड है। अभी रही बात डेटाबेस अगर है तो उसको मैनेज करने के लिए सिस्टम भी चाहिए, एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब वही है। डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? ऐसी सॉफ्टवेयर सिस्टम विच इज मेंट फॉर मैनेजिंग द डेटाबेस इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर वो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन पे आते हैं तो अभी देखो, इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, वो सॉफ्टवेयर सिस्टम है दैट enables यूजर टू ऑर्गेनाइज, स्टोर एंड रिट्राइव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। तो भाई तू तय कर कि तुझे डेटा का ऑर्गेनाइजेशन कैसा चाहिए। तू वो करने के बाद में तेरे तुझे एक फैसिलिटी मिलेगी यूजिंग विच यू विल बी एबल टू स्टोर द डेटा, and as and when you want the data back for some purpose, you can retrieve it, you can fetch it from the database. So another definition is it is a general purpose software system that processes that sorry facilitates the process of defining, constructing, manipulating, and sharing the database among various users and apps. इसका मतलब क्या है?
डिफाइनिंग का मतलब है कि तू पहले उसका ऑर्गेनाइजेशन तय कर। जैसा अभी एक आधा बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो आर्किटेक्चर आता है, बोलता है भाई ऐसा ये मेरा प्लान है और इधर मुझे ओके लिविंग रूम चाहिए और इधर ये छोटा बेडरूम रहेगा, ये मास्टर बेडरूम, ये सब जो है प्लान है। यार अभी तो बिल्डिंग बननी बाकी है। तो प्लान जो है वो डिफाइनिंग है। इट इज बेसिकली ओके अराइविंग अपॉन द स्कीमा। स्कीमा इज द वे वी वांट द डेटाबेस टू to be recorded, data to be recorded is, and in a more simple form तू टेबल का ढांचा बना रहा है। तू कह रहा है कि स्टूडेंट का डेटा अगर मुझे बनाना है, रिकॉर्ड करना है, तो मुझे इतने इतने कॉलम चाहिए। यार आई एम जस्ट टेलिंग यू, I know that my now the stylus and digital pad is creating a trouble. It's just creating some okay strokes, ऐसा strokes आ रहा है, but then please be with me। अच्छा, तो ये जो टेबल है, मेरे टेबल में 4 कॉलम चाहिए मुझे। पहले कॉलम का पर्पस रोल नंबर रहेगा, उसके बाद में नाम रहेगा, तो उसके बाद में उसका एज रहेगा, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद में और कुछ रहेगा, समझा ना ये? तो ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट इज नथिंग बट ऑब्वियसली ओके डिफाइनिंग प्रोसेस है। तो पहले तय तो कर दे भाई, कैसा चाहिए तुझे डेटा। तो तय करने के बाद में then you create the tables, and when you create the tables now you are in position to record, populate the data। तो constructing is nothing but population and attempt to populate। अभी एक बार तू टेबल डाल दिया तो तू अभी रिकॉर्ड्स डालना शुरू कर सकता है, स्टूडेंट रिकॉर्ड, एम्प्लॉय रिकॉर्ड, जो भी कुछ है। गॉट द पॉइंट? सो व्हाट इज डिफाइनिंग, टेल मी। am I there? am I lost? दिव्या, वंश, रोहन? Yes, sir, we can hear you. Yeah, please, please, I'm again requesting just hi, hello in between, sometimes good for my health, if not yours। थोड़ा सा बीच बीच में किया करो दोस्त। तो Sir, ये जो, या sir, you'll be uploading this PPT? I'll be uploading, Sanjana, now, definitely immediately I will be No, uploading sir, it. at the end of the class. No, sir, not urgently. No, End of immediately, I mean, obviously, okay. Moment we close the today's session, I'll be, yes, sir. because this is. I know that I being at your place, I know that first topic being a very introduction. It is only getting familiar with some terms and terminologies, theoretical and yeah. So please be with me. I'm trying my best. Okay. And Yes, sir. unfortunately, what is happening? My this pad is not working properly, so it doesn't permits me to okay use some diagrams and to just okay keep the session alive. So Okay, that is no the reason I'm problem. requesting. Yeah, thank you. Yeah. So ये जो बात हो रही थी ना, हाँ, डिफाइनिंग का मतलब है तू ढांचा तैयार कर, तू फॉर्मेट तैयार कर, टेबल कैसा चाहिए रे तुझे, कितने कॉलम्स चाहिए, पहले कॉलम का पर्पस क्या है। अच्छा, पहले कॉलम में क्या टाइप के वैल्यूज एक्सपेक्ट कर रहा है, इंटीजर पहले कॉलम में आएगा या स्ट्रिंग आएगा या फ्लोट टाइप, ये सारा ये डिफाइनिंग है, स्कीमा है, उसको स्कीमा कहा जाता है। उसके बाद में एक बार तेरा टेबल बन गया तो तू अभी डालते रहे उसमें डेटा, रिकॉर्ड करना शुरू कर, स्टोर करना शुरू कर, दैट इज एन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कर दिया तूने, डेटा डाल दिया, तेरे डेटाबेस में बहुत सारा डेटाबेस में डेटा डाल के रखा है। क्या अभी तू सिर्फ बैठा रहेगा या मैनिपुलेशन की भी बात एंड प्रोविजन होना चाहिए? तो मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। कोई पूछेगा क्या क्या मैनिपुलेशन, तो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म देयर आर वेराइटी ऑफ ways of doing it। Simplest form, I should be able to delete moment I realize that this record is no longer required, its significance is lost। यार अभी इसकी जरूरत नहीं है तो डिलीट करना चाहिए, तो डिलीट करने का प्रोविजन हो।
फिर कोई बोलेगा यार जब मैंने एंटर किया था ना वो थोड़ा गलती हो गया, या अभी मुझे चेंज करना है, तो अपडेट करने का प्रोविजन हो. सो आई एम टॉकिंग अबाउट डिलीट, आई एम टॉकिंग अबाउट एन अपडेट. इंसर्ट तो ही है, कंस्ट्रक्शन में इंसर्ट हमने बात की थी, ये सुनो. तो ये सारे जो ऑपरेशन है उन्हें मैनिपुलेशन कहा जाता है. एंड ये करने के बाद में अभी सबसे ब्यूटी ऑफ द डीबीएमएस इज दैट the entire database is shared among, it is shareable, it is a shareable environment. Okay, so sharing basically is a very characteristic, whereas in traditional file system we are saying that it is more of an a kind of an what we say care and share की बात होती है आजकल, ये सुनो. तो शेयर कंपोनेंट ही वहां मिसिंग था, और शेयर कंपोनेंट अगर मिसिंग है तो केयर कंपोनेंट भी शायद मिसिंग होगा. तो सब प्रॉब्लम्स थे उस वक्त. तो यहाँ शेयरिंग भी होता है अमॉन्ग डिफरेंट यूजर्स एंड एप्लीकेशंस. सो अगर मुझे लॉजिकली ये एक्सप्लेन करना है कि भाई यार तू अभी बता क्या फर्क गिरा डीबीएमएस से, तो एक लेयर आ गई, ये वो एक लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं हम लोग. तो ये एक एडिशनल लेयर आपको दिखाई दे रही है क्या? ये लेयर का मतलब है कि और एक बीच में हमने और एक सिस्टम को डाल के रखा है. व्हाट इज दिस? आर यू एबल टू विजुअलाइज दिस एंड मेक अ नोट ऑफ केयर? वन मोर लेयर इज Yes, देयर. sir. सो ये जो है वी कॉल इट एज एन लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. अभी क्या हो रहा है कि तेरा जो डेटा है ना वो फाइल फील अलग अलग नहीं, फाइल एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से वो फाइल ही है, वो अलग बात है. लेकिन अभी हम लोग जो अपना जो पर्सपेक्टिव है वो ऐसा है कि अभी सारा डेटा ना एक कलेक्शन में रिकॉर्ड होगा, जिसे हम लोग डेटाबेस कहते हैं. डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा. तो ये सारा जो पूरे का पूरा ओके, और कॉर्पोरेट का जो डेटा है या यूनिवर्सिटी की बात हो रही है तो पूरा यूनिवर्सिटी का डेटा जो है कि कितने कॉलेजेस मेरे साथ वो यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है, उनके प्रिंसिपल कौन है, वो एकेडमिक काउंसिल पे कौन है, कंट्रोलर कौन है एग्जाम का, कितने स्टूडेंट ने एनरोल किया, महाडीबीटी का, ये सब कुछ यूनिवर्सिटी एनरोल, उस पूरा का पूरा ना उनके डेटाबेस में पड़ा है. व्हाट द पॉइंट? और अब ये जो बंदे हैं ना, जैसा अभी अलग अलग डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रार बैठा है यहाँ, उसके कलीग्स है, स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ, अकाउंट डिपार्टमेंट है, हेड अकाउंटेंट बैठा है, जूनियर अकाउंटेंट बैठा है, क्लर्क बैठा है. तो अभी ये बंदे ना स्टिल दे आर यूजिंग द एप्लीकेशंस ओनली. एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी डेवलप, एंड द एप्लीकेशंस जितना अच्छा यूआई यूएक्स है उतना अच्छा है. दो यू विल बी इट्स कस्टमाइजेशन की बात हो रही है. जितना अच्छा यूजर का एक्सपीरियंस रहेगा उतना वो खुश होगा, उतना उसका प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ेगी, और उतना ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा. ये सब बात हो रही है आजकल. ओके, सो ये एप्लीकेशन तो है, लेकिन अभी ये एप्लीकेशन डायरेक्टली ना डेटा के साथ खेलते नहीं है. अगर आप पहले का व्यू देखोगे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम का, तो अपने एप्लीकेशन डायरेक्टली फाइल के साथ खेल रहे हैं, फाइल के साथ एक्सेस कर रहे हैं. आर गेटिंग दिस? और फाइल्स में डेटा पड़ा है. आर यू एबल टू? Yes, sir. और अभी अभी चेंज जो आया, तो अभी क्या हो रहा है कि एप्लीकेशन को अलाउड नहीं है भाई, तू उधर नहीं जानेगा, तू मेरे थ्रू जानेगा. तो डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, व्हिच इज सॉफ्टवेयर सिस्टम which basically okay facilitates in the process of defining, constructing, manipulating and sharing. अभी अभी हमारी बात हुई, तो ये बोलता है कि तू मेरे से बात कर, एंड ये जो रिक्वेस्ट आई है कि भाई यार मुझे वो थोड़ा सा डेटा दे यार, तो DBMS says okay just wait, I will do the favor to you, I will fetch the data from the collection, from the database, and will satisfy your okay request. तो ये एक नया आ गया. गॉट द पॉइंट? एंड डीबीएमएस जो है, इट इज जैसा मैंने कहा कि इट इज इंटीग्रेटेड एंड शेड एनवायरनमेंट. इसका मतलब है कि डेटाबेस जो है वो इंटीग्रेटेड है. इंटीग्रेटेड का मतलब है यार तू कितने भी एप्लीकेशन लेके आना, वो सारे जो एप्लीकेशन है उनका डेटा विल बी रिगार्डेड एज सिटिंग इनसाइड एन डेटाबेसेस.
So it is an integrated data. Okay, so it is a data catering to all the departments. So it is integrated environment, and this single unit of data, logically speaking, is also shareable among all the applications. So it is integrated. The entire data appears to be integrated, and then is also made available for all applications. So it is integrated and shared environment. And one more very characteristic of the DBMS is that, along with, in addition to the actual data, the data related with the student and course and registration, employee data, जो भी कुछ है, in addition to that, in database, you will find that DBMS also maintains something called as a data dictionary. ये जो डेटा डिक्शनरी है ना, डेटा डिक्शनरी को कभी कभार कैटलॉग भी कहा जाता है. कैटलॉग. और कैटलॉग में अगर कोई पूछेगा हमसे कि क्या है भाई, उसके अंदर क्या होता है, वो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ डेटाबेस, विल से दैट ये डेटा डिक्शनरी में, डेटा डिक्शनरी कंटेन्स समथिंग कॉल्ड एज metadata, and metadata is nothing but what is it? Data about data. डेटा अबाउट डेटा, या. और इसका मतलब ये है, डेटा अबाउट डेटा का मतलब ये है कि अगर अपने डेटाबेस में हमने एक टेबल क्रिएट किया, ट्रबल देने वाला है मुझे आज, एक टेबल, जस्ट वेट यार, हाँ. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम क्रिएटिंग वन टेबल. स्टूडेंट टेबल हमने अगर बनाया और उसमें टाइम बीइंग ना 3 ही कॉलम डाले, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, रोल नंबर, नेम एंड ब्रांच, ऐसा सोचते. तो पहला रिकॉर्ड जो आएगा, पहला रिकॉर्ड तो रोल नंबर 1 है, नाम राजेश है, ब्रांच CMPN है, समथिंग लाइक दिस. ये पहला रिकॉर्ड हो गया, ये सुनो. Yes, फिर sir. दूसरा रिकॉर्ड डाला. ओके, सो एंड सो एंड सो फोर्थ. तो अभी ये तो एक्चुअल डेटा हो गया. डेटा अबाउट डेटा का मतलब, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डेटाबेस में हाउ मेनी टेबल्स आर देयर, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच एंड एवरी टेबल, in each and every table how many columns are there, for each column what is a column name, attribute name, column name, what is a type of, what is a data type of each and every column. यहाँ रोल नंबर में इंटीजर है, नेम में स्ट्रिंग है, समथिंग लाइक दिस. उसके ऊपर क्या ये कॉलम के जो वैल्यूज है उस पे कोई लिमिटेशन, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है क्या, लिमिट डाल के रखा है क्या कि भाई इसका वैल्यू ग्रेटर देन 80 आएगा तो ये गलत है, लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव मार्क के नहीं है तो गलत है भाई, ये डेटा एंट्री में कुछ तो गड़बड़ है. आर यू गेटिंग दिस? सो ये सारे कंस्ट्रेंट्स. फिर यूजर कितने हैं, which users are allowed to gain an access, whether this user is only allowed to perform and read only, उसके पास जो परमिशन है वो रीड ओनली परमिशन है या वो चेंज भी कर सकता है. तो ऑल दीज थिंग्स आर डेटा अबाउट डेटा. आर यू गेटिंग दिस? सो these details you always will find in the data dictionary, and that is the reason we say that in data dictionary generally contains metadata, data about data. Okay, now big question is how the drawbacks of file processing system, they succeeded in addressing those problems
by introducing the concept of a database management system. So logically speaking, if not getting into the technicalities, because right now we are just at the page number 1 introduction पे हम लोग खेल रहे हैं, तो पहला ड्रॉबैक क्या था उधर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में? डेटा रिडंडेंसी की बात हो रही थी. डेटा रिडंडेंसी का मतलब है कि because every application is regarded as an independent application, every application will have its own set of files in which data gets recorded, and the same piece of data is likely to get recorded in different files pertaining to different application, which will lead to a redundancy. तो यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो डेटाबेस का एनवायरनमेंट है वो इंटीग्रेटेड है. भाई तो अलग अलग जगह हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है, एक ही जगह रहेगा. इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट. आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. So we say that database management system allows us to exhibit controlled redundancy. ऐसा ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ही रिडंडेंसी नहीं आएगा. रिडंडेंसी करते हैं हम लोग, जानबूझ के करते हैं. वो कंट्रोल्ड है, हमारा कंट्रोल है उस पे. और वो क्यों करते हैं मैं अभी एक लॉजिकली आपको बताता हूं. तो ये सी, मुझे बताइए कि एक स्टूडेंट टेबल की बात अगर हो रही है, कॉमन सेंस है, एकदम सिंपल, और एक डिपार्टमेंट टेबल की बात हो रही है. दिस इज, अरे यार, this is student table and this is department table. What you understand from this, I want you to tell. बहुत सारे columns है. There is department number also 1, and department number is D1. Roll number 2, department number is D2, and so on. And department में we have department number, and let us assume that we also have department name, and this is D1, and this is CMPN, this is D2, and this is IT. You tell me, which is this table? टेबलचं नाव सांगा. टेबल का नाम क्या है? Department. नहीं नहीं, ये वाला स्टूडेंट टेबल है. और Student. ये डिपार्टमेंट टेबल है. तो हम्म. आपको कॉमन चीज क्या दिखाई दी? इज इट नॉट इंटेंशनली देयर इज वन कॉलम which is used in a student table, but then okay, it educates us about to which department the student belongs to. तो ये डिपार्टमेंट नंबर यहाँ आ गया, दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. और वो डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल में भी है. उधर तो होना ही चाहिए, क्योंकि तो डिपार्टमेंट नंबर इज अ डेटा विच ऑब्वियसली एंड वेरी स्पेसिफिकली बिलोंग्स टू अ डिपार्टमेंट टेबल. उसमें आना ही चाहिए. लेकिन यहां भी डाला गया ये कंट्रोल रिडंडेंसी. इसलिए डाला गया बिकॉज बाय यूजिंग दिस टू टेबल्स वी कैन एस्टैब्लिश अ लिंक. ओके, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट कहा जाता है. फॉरेन की वगैरह का कंसेप्ट है, छोड़ दो अभी. लेकिन ये एस्टैब्लिश लिंक है. हाँ, इसको पकड़ चल इधर देख. हाँ, कौन सा है? D1 है. अब बता रोल नंबर 1 कौन से डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है? आगे देख, यहाँ आगे देख. कंप्यूटर को बिलोंग करता है. ऐसा लॉजिकली तो ऐसा ही करेंगे ना. ये सुनो, Yes, sir. तो ये डीबीएमएस में पॉसिबल है क्योंकि तुझे डेटा रिडंडेंसी बार बार अलग अलग रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है. और अगर थोड़ा सा रिडंडेंसी आ रहा है तो हमने तय किया है फॉर सम रीजन. ओके, so this is how DBMS, because of an integrated and shared environment, addresses the problem of data redundancy. दूसरा जो प्रॉब्लम था, हमने बात की थी कि इनकंसिस्टेंसी आ सकता है बॉस. एक जगह अगर एक ही डेटा, पीस ऑफ डेटा अगर अलग अलग फाइल्स में आपने डाल दिया और चेंज किया सिर्फ एक ही फाइल में और बाकी फाइल में वैसे का वैसा रहा, तो प्रॉब्लम है. वो फाइल बोलेगा यार ये सही डेटा है, और दूसरे फाइल्स बोलेंगे ये नहीं यार, ये मेरे पास तो अलग वैल्यू दिख रही है. वो जो प्रॉब्लम था
वो जो डेटा इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम था वो यहाँ आने का चांस ही नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि शेयर्ड एंड इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट है। Because okay, if the data is recorded once, it will be made available for all the applications. So because of integrated and shared environment, the first two drawbacks of the file processing system, they are inherently taken care. Okay. तीसरा जो ड्रॉबैक था माय डियर फ्रेंड्स, हमने जो बात की थी, मैंने कहा था कि डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग अ डेटा। इस डेटा है लेकिन उसको अगर खींच के निकालना है फाइल में से, तो मेरे एप्लीकेशन के पास वो वैसा फैसिलिटी मैंने डेवलप नहीं किया है। क्योंकि सारे क्वेरीज तो एंटीसिपेट नहीं हो सकते राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। So when I'm developing a program, it is not possible for me to anticipate each and every query which is likely to arise in a future. आगे चल के फ्यूचर में वो जो यूज कर रहा है बंदा मेरे सॉफ्टवेयर को मैंने जो डेवलप किया है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, एवरी सच रिक्वायरमेंट कैन नॉट बी एंटीसिपेटेड। इसलिए वो स्पर ऑफ द मोमेंट क्वेरी आती है और अपने पास सपोर्ट नहीं है, तो डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा की बात हुई थी हमारी, वो यहाँ आने का चांस नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि स्पर ऑफ द मोमेंट अगर क्वेरी आती है और अगर अपने एप्लीकेशन में वो सपोर्ट नहीं है, तो डीबीएमएस क्या बोलता है, यार चिंता मत कर, मैं तुझे नए क्वेरी लैंग्वेज का सपोर्ट भी ऑफर कर रहा हूँ, विच इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, या सिक्वल प्रोनाउंस करो या एसक्यूएल प्रोनाउंस करो। तो आई एम ऑफरिंग अ क्वेरी लैंग्वेज विच इज एसक्यूएल सिक्वल, and you can directly use it. And if you are using it, you don't have to have an application, okay, going through an application. You can directly talk to me. Are you looking at this? Is it visible to you? Now there is one, if the degree of sophistication is more, if you are well versed with the SQL part, you don't have to rely on application for you to access the database. You can just fire a SQL query, select okay, from where kind of an clause, and the database will intercept your request directly and will serve the purpose, will do a favor to you. Got the point? ये दिखाई दे रहा है आपको सोफिस्टिकेटेड? Yes, sir. तो अभी अभी मुझे बताओ, स्पर ऑफ द मोमेंट क्वेरी आ गई और वो जो रजिस्ट्रार ऑफिस का बंदा है वो बोल रहा है, यार मेरे एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन है ना एकेडमिक एप्लीकेशन, इसमें वो फैसिलिटी नहीं है यार। अभी वो जो मेरा बॉस जो डेटा पूछ रहा है वो मैं फेच नहीं कर पा रहा हूँ, इधर वो ऑप्शन ही प्रोवाइड नहीं किया गया। तो फिर वो डीबीएमएस जो अपना डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बोलता है, यार मेरे पास बंदे हैं, डोंट वरी, दे आर गुड इन एसक्यूएल, so I can directly talk to DBMS by using SQL. So they will fire a query, and then such spur of the moment kind of an queries can be satisfied. So difficulty in accessing data ka bhi problem is taken care because of the language, query language facility what DBMS is offering to the community. Got the point? उसके बाद में हमने बात की थी और एक ड्रॉबैक की, डेटा आइसोलेशन की। डेटा आइसोलेशन का मतलब मैंने ये कहा था कि आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ये एकेडमिक एप्लीकेशन ऑलरेडी बन गया, एकेडमिक एप्लीकेशन को जो जो डेटा चाहिए वो हमने फाइल में डाल के रखा है, एकदम चंगे चल रहा है एकेडमिक एप्लीकेशन, रजिस्ट्रार ऑफिस वाले बंदे खुश है एकदम। फिर अकाउंट डिपार्टमेंट बोलता है कि भाई मैंने क्या पाप किया है, मेरी क्या गलती हुई, मुझे भी चाहिए अभी। वो उस दौर की बात कर रहा हूँ, ऑटोमेशन अभी जस्ट शुरुआत हुई। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन बोलता है चल यार इसको इसके लिए भी डेवलप करना शुरू करो। अभी फ्रॉम द न्यू एप्लीकेशन विच इज अबाउट टू गेट डेवलप, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई एम टॉकिंग अबाउट। फिर ये जो बंदे हैं जो जिन्हें डेवलप करना है, ऐसा मैंने एक्सप्लेन किया था, देखो ये देखते यार अकाउंट्स एप्लीकेशन को भी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को यार वही डेटा चाहिए, उसी टाइप का, एम्प्लॉय की भी जानकारी चाहिए, स्टूडेंट की भी जानकारी चाहिए, ये सब कुछ। लेकिन यार वो उसका फॉर्मेट और इसका फॉर्मेट अलग अलग है, और दो एप्लीकेशन एक फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस और कुछ रहेगा। तो फिर ये बंदे क्या करेंगे, वो बोलेंगे यार छोड़ो ना, डेटा है लेकिन आइसोलेटेड है, ऐसा सोचो है ही नहीं, तो अपने अपने फाइल्स में वापस वो डेटा डाल दो। गॉट द पॉइंट?
ऐसा वो ड्रॉबैक जो हमारी चर्चा रही डेटा आइसोलेशन पे, उस स्पिरिट में रही। तो अभी वो प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ शेयरेबल एनवायरनमेंट है। अगर किसी भी एप्लीकेशन के लिए तूने डेटा अगर डाल के रखा है डेटाबेस में, वो शेयरेबल है। तू नया एप्लीकेशन डेवलप शुरू कर, तो डेटा है। और डीबीएमएस अबाउ, ओवर एंड अबाउ, डीबीएमएस क्या बोलता है कि अगर लेट अस अज्यूम दैट, ये सिनेरियो देखो, वेरी इंटरेस्टिंग। अकाउंट्स वाले बोलते हैं यार वो रजिस्टर ऑफिस वाले जो एम्प्लॉय डेटा को देखना चाहते हैं ना, जिस रूप में देखना चाहते हैं, उनका व्यू अलग है, तो मेरे साथ मैच नहीं कर रहा है, मुझे अलग चाहिए डेटा, मुझे ये फॉर्मेट में चाहिए। तो डीबीएमएस आल्सो ऑफर्स देम अ फैसिलिटी। डीबीएमएस सेज दैट तू मुझे बताना कैसे फॉर्म में चाहिए तुझे, तो आई विल क्रिएट वन व्यू फॉर यू, एंड देन ओके यू विल बी गेटिंग एग्जैक्टली व्हाट द वे you want the data to look like. So that is the beauty again and DBMS. Got the point? Yes, sir. So जो अब इसका प्रॉब्लम था आइसोलेशन का, वो भी चला गया। फिर हमने बात की थी और एक ड्रॉबैक की। मैंने कहा था कि यार इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आज कुछ लिमिट है, कल जाके चेंज होता है, तो मुझे एप्लीकेशन को डेवलप करना, चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, अभी इसलिए नहीं क्योंकि ये सारे जो लिमिट एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है, उन्हें रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है बताओ अभी? दे आर मेटा डेटा। वेयर एग्जैक्टली दे गेट्स रिकॉर्डेड? Dictionary. डेटा डिक्शनरी में। तो अगर कुछ चेंज होना है तो तुझे इधर एप्लीकेशन को टेम्पर करने की जरूरत ही नहीं है, तुझे वो सारे चेंजेस यहाँ डालने हैं, बस यहाँ चेंजेस डालने हैं। तो द चेंजेस व्हिच आर हैपनिंग हियर, योर एप्लीकेशन ऑब्वियसली ओके इज नॉट अवेयर ऑफ दैट, इज केप्ट अवे फ्रॉम दैट। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट। सो जो ट्रबल था उस दौर में, वो ट्रबल भी ओवरकम कर गया बिकॉज ऑफ द डेटा डिक्शनरी, and because in data dictionary what gets recorded is a metadata. Okay, so उसके बाद में हमारी जो बात हुई थी ड्रॉबैक की, वो था ऑटोमेसिटी प्रॉब्लम है। एक तो पूरा होना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, ऐसा वाला इफेक्ट। आधा अधूरा काम चलेगा नहीं भैया। तो ये जो है, ये जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट डीबीएमएस सेटिस्फाई करता है। अभी आई विल नॉट पुट माय एनर्जी ऑन टू दैट, बट देन ओके डीबीएमएस के अंदर ना छोटे छोटे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होते हैं, एंड वन ऑफ दैट कंपोनेंट हैपेंस टू बी ओके समथिंग कॉल्ड एज एन ट्रांजैक्शन मैनेजर। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। तो मैनेजिंग अ ट्रांजैक्शन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस ट्रांजैक्शन मैनेजर, and then that is how eventually it also ensures the automaticity. So all or none वाला इफेक्ट हमें मिलता ही मिलता है by using transaction manager and also something called as these are the software parts, components of DBMS recovery manager. तो ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं टू सी टू इट दैट अगर ट्रांजैक्शन का एग्जीक्यूशन चल रहा है एंड हाफ वे, बीच में ही कुछ गड़बड़ हो गई, ट्रांजैक्शन पूरा हो नहीं पा रहा है, तो ट्रांजैक्शन मैनेजर एंड रिकवरी मैनेजर ऑब्वियसली विल से यार ऐसा सोच कि हुआ ही नहीं है, तो पहले के स्टेट में लेके चल। एंड फॉर if at all your transaction gets successfully, it commits, its execution happens successfully, then ये दोनों बोलते हैं चल अभी नया वैल्यू पकड़, अपडेटेड वैल्यू पे भरोसा रख। और बीच में गड़बड़ हुई तो बोलता है अपडेटेड वैल्यू छोड़ दे, ओल्ड वैल्यू पे, ओके, प्रीवियस वैल्यू पे भरोसा रख, ऐसा वो फिलॉसफी है। तो बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट्स द ऑटोमेसिटी प्रॉब्लम इज टेकन केयर। कंसिस्टेंसी जो है, कॉन्करेंट एनोमलीज, कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज का जो ड्रॉबैक मैंने बताया था, यहाँ देखो कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज कि एक से ज्यादा प्रोसेसेस, एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस एक साथ एक डेटा को, एक रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ट्रबल आ सकता है। तो ये ट्रबल के साथ निपटने के लिए डीबीएमएस के अंदर ना और एक कंपोनेंट होता है
and that is called as something called as a lock manager. और कभी कभार ये लॉक मैनेजर इज वेरी स्पेसिफिक टर्म, इसको ये भी कह सकते हैं, व्हाट इज इट, कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर, ये भी कहा जा सकता है। तो ये फंडा एकदम सिंपल है लॉक मैनेजर का कि ये रिसोर्स को, ये एक रिसोर्स है, उसको एक से ज्यादा प्रोसेसेस ट्रांजैक्शन को एक्सेस करना है। तो ये अभी ट्रांजैक्शन समझो, ये जो ड्रॉ किया है मैंने, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ ट्रांजैक्शन या प्रोसेस फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू, एकदम सिंपल है। तो जिसको भी पहले एक्सेस मिलेगा तो ये अपना रिकवरी मैनेजर या लॉक मैनेजर क्या करता है कि रिसोर्स को लॉक कर देता है, वो ताला लगा देता है, बोलता है देख एक बंदा एक्सेस कर रहा है, अभी इसको ताला लग चुका है, अभी दूसरे बंदे को वेट करना पड़ेगा जब तक मैं ताला खोलूंगा नहीं। वो ऐसी फिलॉसफी है, तो इसलिए उसे लॉक मैनेजर कहा जाता है। व्हाट द पॉइंट? Hi guys, are you there? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. so Yes. और एक लास्ट ड्रॉबैक जो मैंने कहा था कि यार सिक्योरिटी कंसर्न्स तो बहुत है आज के दौर में और सदा रहे हैं। उसकी सिवियरिटी जो थी वो पहले कम थी, अभी तो बहुत ही ज्यादा है। तो डीबीएमएस भी अपने साइड से कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स ऑफर करता है। So you can create the users, you can define the roles, you can decide upon the access policies, you can set the password. That also is very much possible from a DBMS. Okay, so you always should have अलग अलग लेवल का सिक्योरिटी मेजर्स, जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल का एक सिक्योरिटी मेजर होता है, फिर नेटवर्क लेवल का एक सिक्योरिटी मेजर चल रहा है, फिर एप्लीकेशन लेवल का भी सिक्योरिटी मेजर रहता है। और ये सब होने के बाद में कुछ अगर वेरी सेंसिटिव डेटा अगर है तो फिजिकल लेवल की भी सिक्योरिटी की बात होती है कि भाई वो प्रीमाइसेस जो है जहां डेटा सेंटर है वो प्रीमाइसेस को भी फिजिकली गार्ड किया जाता है। तो डीबीएमएस आल्सो बेसिकली ओके कंट्रीब्यूट्स डेटाबेस लेवल का भी एक सिक्योरिटी ऑफर की जा रही है। सो दैट इज हाउ द सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे आर आल्सो टैकल्ड बाय यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। So any questions till this point what we have discussed? Let me reiterate on that. We started with something like how in today's time data is important and this and that. Then I was trying to tell you just okay, let us visit typically speaking and understand very characteristic of an old age kind of an approach called as traditional file processing system. उसके बाद में हमने कुछ ड्रॉबैक्स देखे ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के। पोटेंशियल ड्रॉबैक कहा मैंने, अगर अटमोस्ट केयर नहीं ली गई तो ये ड्रॉबैक्स आ सकते हैं, और अटमोस्ट केयर लेने की बात अगर हो रही है तो इनडायरेक्टली तो जो प्रपोज कर रहा है सिस्टम वो डीबीएमएस ही रहेगी, ऐसा उसका मतलब है। सो मैंने कहा कि पोटेंशियल ड्रॉबैक्स थे, फिर ये ड्रॉबैक्स जो दिक्कतें आई उस दौर में तो तय किया गया कि भाई अभी बस हो गया, इसको अभी कुछ ना कुछ हल निकालना पड़ेगा। तो these drawbacks in fact have prompted the development of a database management system concept DBMS। फिर DBMS पे हमारी चर्चा रही। डेटाबेस क्या है? तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा है। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? भाई ऐसी सिस्टम जो डेटाबेस को मैनेज करे।
और थोड़ा टेक्स्ट बुक डेफिनेशन पे भी चले गए कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर सिस्टम है, डिफाइनिंग है, कंस्ट्रक्शन में मैनेज हेल्प करती है, फैसिलिटेट करती है। फिर मैनिपुलेशन की बात चली, शेयरिंग की बात चली, और फिर वी हैव टू ऑब्वियसली जस्टिफाई, भाई ये सिस्टम की बात हो रही है तो वो सारे जो ड्रॉबैक्स है वो कैसे ओवरकम किए गए, तो उस पे अभी हमारी जो चर्चा हुई कि बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसा इन टू कट शॉर्ट एंड इन अ नटशेल, to summarize, I'll say that कि redundancy का problem is tackled because of the shared and integrated environment what DBMS is offering. Then inconsistency is also handled. We can get rid of that inconsistency problem because of a shared and integrated environment. Data डिफिकल्टी इन डेटा एक्सेसिंग की बात चली कि स्पर ऑफ द मोमेंट कुछ क्वेरी आती है, तो मैंने कहा कि भाई कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी डीबीएमएस हमें एक लैंग्वेज फैसिलिटी, क्वेरी लैंग्वेज फैसिलिटी ऑफर करती है, बोलती कि एक काम कर, अगर स्पर ऑफ द मोमेंट क्वेरी आती है, अभी अकस्मात आती है, तो तू एक काम कर कि भाई तू एसक्यूएल यूज कर ले, तेरा काम बन जाएगा। फिर उसके बाद में हमने बात की थी कि यार डेटा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे एप्लीकेशन के लिए काम में नहीं आ रहा है, ऐसा वहां प्रॉब्लम था। यहाँ प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि शेयर्ड एंड इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट है। फिर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स पे बात चली, लिमिट चेंज हो रहे हैं, कंस्ट्रेंट्स चेंज हो सकते हैं, क्राइटेरिया चेंज हो सकते हैं, तो क्या मैं हर फॉर एवरी सच चेंज एम आई सपोज टू चेंज माय सॉफ्टवेयर? तो आंसर इज बिग नो, and you cannot do that, should not do, because it is an costlier affair. Then what I should do? So you do, boss, your metadata is residing in data dictionary, डेटा अबाउट डेटा, तो तुझे जो चेंज करना है लिमिट में इधर जाके चेंज होगा, उधर एप्लीकेशन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में हमने ट्रांजैक्शन पे बात की, और वो अभी अभी ताजा ताजा है, तो आई विल नॉट गेट अगेन इनटू दैट। ट्रांजैक्शन दैट इज ऑटोमेसिटी की बात की, फिर बाद में कॉन्करेंसी कंट्रोल की बात की, और सिक्योरिटी की बात की, और ऐसा वो डीबीएमएस के उस उन्हें कैसा टैकल करता है, इस पे बात चली हमारी। आर यू ओके विद दिस? कैसा सर, ये स्लाइड्स हमें मिलेंगे क्या? तुरंत मैं उसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा तुम्हें। जी सर। तो अभी और मुझे ना देखिए यार, ये पहला सेशन है, और आप और थ्योरी भी है, बहुत ज़्यादा थ्योरी है, सवाल ही नहीं है, थियोरेटिकली है। तो आपको अगर जब लगेगा कि सर आज थोड़ा कट शॉर्ट करते हैं और हमें ये प्रेजेंटेशन शेयर कर दो, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा देख भी लेंगे उसको, तो और भगा सकते हैं गाड़ी। जब आपको लगेगा ऐसा, please let me know. We'll conclude with the session. Okay, so no problem from my side. तो डीबीएमएस के ना अभी आर्किटेक्चर पे हम लोग बात करेंगे, और उसका गोल जो है, क्या गोल क्या हो सकता है यार किसी भी सिस्टम का? किसी भी सिस्टम का आई बिलीव गोल एक ही हो सकता है कि भाई दो चीज पे ध्यान रखो। एक तो डिग्री ऑफ कन्वीनियंस होना चाहिए, कन्वीनियंट एनवायरनमेंट होना चाहिए, एंड इफिशिएंट भी होना चाहिए, यूजर को एकदम कंफर्टेबल भी लगे, और कंफर्ट देने के लिए आप उसकी इफिशिएंसी कम मत होने दो। So that is also applicable to DBMS, to provide an environment that is both convenient as well as efficient to use in retrieving and storing database information happens to be the primary goal of DBMS. And one more goal is very important, is to provide an abstract view of database to the user. Data abstraction का मतलब क्या है? Abstract view का मतलब क्या है? अभी अगर आपने जावा वगैरह किया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वहां तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात होती ही है। What exactly, if anyone please? Data hiding. Fantastic, means हाइडिंग का मतलब ये है कि भाई जो अनवांटेड डेटा है वो तू क्यों बता रहा है मुझे, मुझे वो उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं है, doesn't have any significance. What I am interested in only that should be made visible to me. And also the detailing जो है ना, डिटेलिंग तो अननेसेसरी ज्यादा डिटेलिंग में मत लेके जा यार, मुझे उसकी जरूरत नहीं। अच्छा, दूसरा बंदा क्या बोलेगा, उसके रोल के हिसाब से चलता है, बोलता है मुझे पूरे डिटेल्स चाहिए।
तो यार ये तो पर्सन टू पर्सन और उसका रोल जो है उसके हिसाब से चलेगा। तो जिसे जो दिखना चाहिए वो हिसाब से उसे दिखना चाहिए। जिसको जरूरत नहीं है तो डेटा हाइड होना चाहिए, तो दैट इज एन एब्स्ट्रैक्शन मैकेनिज्म। एब्स्ट्रैक्शन मैकेनिज्म इज अ मैकेनिज्म ऑफ हाइडिंग, not disclosing, hiding unnecessary details, and projecting only those details which are significant to the user, which are significant. Got the point? तो ये एब्स्ट्रैक्शन के लिए एक 3 लेवल आर्किटेक्चर प्रपोज किया गया। उसे एनसाई स्पार्क भी कहा जाता है। एनसी, द वे यू प्रोनाउंस एनसाई, कोई एनसाई बोलता है, कोई एनसी बोलता है। तो एनसी स्पार्क, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ओके, तो स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट कमिटी in ANSI, they have proposed this, so it is ANSI Spark 3 level architecture. तो 3 लेवल्स है, आपको दिखाई दे रहे हैं 3 लेवल्स। सो ये जो डेटा पड़ा है उसको परसीव किया जाता है कि एज इफ बेसिकली ओके इट इज द डिटेलिंग इज मेड अवेलेबल एट 3 डिफरेंट लेवल्स। पहला लेवल जो है फिजिकल लेवल है, उसे इंटरनल लेवल भी कहा जाता है। और ये फिजिकल लेवल का जो फोकस है, वो फोकस ऐसा है कि वो हाउ पे फोकस करता है। फिजिकल लेवल में बेसिकली ओके द इंटरनल लेवल स्कीमा, स्कीमा का मतलब डिस्क्रिप्शन है। लुक एट दिस, आई हैव रिटन इट, स्कीमा इज नथिंग बट एन डिस्क्रिप्शन। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, यू विल फाइंड दैट ओके दिस डिस्क्रिप्शन ओके tries to emphasize focus on how factor कि what पे नहीं है, how data is stored। डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर्स कौन से है, इंडेक्सिंग किया है नहीं किया है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सिक्वेंशियल है, हैशिंग की गई है या नहीं। सो एग्जैक्टली डेटाबेस में जो डेटा स्टोर किया गया, तो डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर्स कौन से यूज किए, बी प्लस ट्रीज यूज किया है या नहीं, या और कुछ टेक्निक यूज किए, ये सारे जो डिटेल्स है, दोज डिटेल्स बेसिकली ओके आर मेड अवेलेबल एट विच लेवल, इंटरनल लेवल। और ऑब्वियसली यार ये इसकी डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। बहुत ज्यादा डिटेल्स अगर आ रहे हैं, टेक्निकल डिटेल्स की डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर। अच्छा, जो बंदा एंड यूजर है, मुझे बताइए, एंड यूजर जो है, जो किसी डिपार्टमेंट में क्लरिकल जो बंदा है, आर यू गेटिंग दिस? तो उसे क्या करना है यार, ये डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर कौन सा यूज किया, एक्सेस मेथड क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस है या रैंडम एक्सेस है, हैशिंग क्या होता है, उसको कुछ लेना देना है क्या? नहीं सर। जो रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे बैठा है बंदा, या लोकल टिकट आप जा रहे हो वहां, उसको क्या करना है, लेना देना है कि अंदर कैसा डेटा है, कितने टेबल्स बने, उसको कोई लेना देना नहीं है। गॉट द पॉइंट? तो एंड यूजर पर्सपेक्टिव बोलता है मुझे सिंपलेस्ट सीन मेरे काम की चीज बताओ, वो एक्सटर्नल है, वहां डिग्री ऑफ डिफिकल्टी कम है। लेकिन ऐसे भी बंदे हैं जो जो डिजाइनर है, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, उनको ध्यान रखना पड़ता है कि एग्जैक्टली स्टोरेज स्ट्रक्चर्स क्या है, एक्सेस मेथड्स क्या है, उनको ट्यूनिंग करना पड़ता है। गॉट द पॉइंट? तो वो सारे internal level details are okay, they are regarded as if they are part of internal schema which is at internal level or physical level. So that is the reason this is one particular level and the focus is on how। उसके ऊपर थोड़ा सा लेस डिफिकल्ट हो गया, थोड़ी सी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी कम हो गई, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई, उसे कंसेप्चुअल स्कीमा कहा जाता है। अभी यार तू कंसेप्ट में बात कर, थोड़ा लॉजिकली बात कर, तो इसे लॉजिकल लेवल कहा जाता है। और लॉजिकल लेवल का फोकस जो है माय डियर फ्रेंड्स, वो किस पे है, व्हाट पे है। और व्हाट का मतलब वो बोलता है कि व्हाट डेटा इज देयर, हाउ नहीं। वो बोलता है क्या क्या डेटा है बता, वो डेटा जो है उसमें रिलेशनशिप क्या है बता, व्हाट रिलेशनशिप, व्हाट डेटा। ओके, सो ये फोकस है कंसेप्चुअल लेवल का, कितने टेबल्स है, टेबल में कुछ कॉमन कॉलम्स है क्या,
ये सारे जो डिटेल्स है वो कंसेप्चुअल लेवल पे होते हैं। तो फोकस इज ऑन व्हाट, फिजिकल लेवल फोकस इज ऑन हाउ डेटा इज स्टोर्ड, व्हाट डेटा इज स्टोर्ड। लेकिन कंसेप्चुअल लेवल बेसिकली इज अ सिंगल यूनिट। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन को पूरा का पूरा जो डेटा लगेगा, वो जितने भी टेबल्स पड़े डेटाबेस में, वो सारे टेबल्स विल बी रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ अ कंसेप्चुअल लेवल। माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, टेबल आप कहे अगर ऐसा देख रहे हो कि मेरे डेटाबेस में डेटा मेरा टेबल में पड़ा है, आर यू गेटिंग दिस? कितने टेबल्स की बात हुई थी हमारी यहां, बताइए? हाउ मेनी टेबल्स वी वर टॉकिंग अबाउट? इधर दो ही टेबल्स की बात हुई थी, राइट? स्टूडेंट एंड डिपार्टमेंट। स्टूडेंट एंड डिपार्टमेंट। अभी सुनो मेरी बात। अगर मैं कहूं कि मेरे डेटाबेस में दो टेबल्स पड़े, तो ये तेरा जो व्यू है ना, जितने भी टेबल्स है, दो ही है, तो दो कहूंगा। तो तू जब टेबल के फॉर्म में देख रहा है ना, तो वो कंसेप्चुअल स्कीमा है। लेकिन डेटा कभी टेबल टेबल फॉर्म में, मेमोरी में टेबल फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं होते। वो मेमोरी में डालने के लिए डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर्स यूज किए जाते हैं। जैसा तुमने डेटा स्ट्रक्चर में देखा भी होगा, अगर वो सब कोर्स किया होगा तो, बी ट्रीज वगैरह वगैरह, हैशिंग, ये सुनो। यस सर। तो वो जो पूरा है कि मेरे इसमें इतने इतने टेबल्स पड़े, वो कंसेप्चुअल लेवल है। अभी ये तो पूरा का पूरा डेटा हो गया। तो जैसा मैंने कहा कि एंड यूजर जो फिजिकल लेवल पे क्या होगा? कंसेप्चुअल लेवल में समझो टेबल्स है, तो फिजिकल लेवल पे क्या होगा? कंसेप्चुअल लेवल पे लॉजिकली आप क्या देख रहे हो कि मेरे डेटाबेस में इतने सारे टेबल्स है, टेबल दिखाई दे रहे, टेबल का नाम क्या है, इतने कॉलम से, ये तेरा कंसेप्चुअल स्कीमा हो गया। गॉट द पॉइंट? फिजिकल में ना, हर टेबल के लिए, फॉर एवरी सच टेबल, इंटरनली व्हाट डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू एक्चुअली रिकॉर्ड द डेटा इन द मेमोरी। अच्छा, मतलब हर एक कॉलम के अंदर क्या डेटा है, मतलब फॉर एग्जांपल हर एक नहीं 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 स्टूडेंट और नहीं हर नहीं एक डिपार्टमेंट। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं। अगर ये एक टेबल है, मुझे जब मैं टेबल के फॉर्म में देख रहा हूं तो कंसेप्चुअल लेवल के हिसाब से देख रहा हूं। लेट अस अज्यूम दैट ये टेबल एम्प्लॉय टेबल है, इसके अंदर डेटा भी पड़ा है। अभी ये जो टेबल है ना, एक्चुअली मेमोरी में मीन्स थोड़ा सा ऊपर का एब्स्ट्रैक्शन होता है। एक्चुअली मेमोरी में जब रिकॉर्ड की स्टोर किया जाता है, तो उसका डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करके स्टोर किया गया। डेटा स्ट्रक्चर कोर्स किया है क्या तुम लोगों ने? यस सर। हाँ, तो अभी एग्जैक्टली डेटा यहाँ कौन से डेटा स्ट्रक्चर की बात होगी वो अलग है। लेकिन ट्रीज किया आपने, ग्राफ्स किया है, आपने लिंक लिस्ट की, ये किया, वो किया, स्टैक किया, क्यूज किया, ये सुनो। तो जनरली डीबीएमएस के लिए ना, बी ट्रीज या तो बी प्लस ट्रीज किए जाते हैं, बी प्लस ट्री या बी ट्री, ये दो स्ट्रक्चर्स है। तो ये बी ट्री, आप जिस अभी जो टेबल के फॉर्म में देख रहा है उसको क्या करना है यार, तू बी ट्री यूज कर या क्या कर, मुझे क्या, मुझे टेबल के फॉर्म में दिखना चाहिए, मुझे पसंद आता है वो, और सही बात है, ये सुनो। यस सर। तो फोकस ऑफ कंसेप्चुअल लेवल इज व्हाट, एंड कंसेप्ट द फोकस ऑफ इंटरनल लेवल इज, तू बता कैसा स्टोर किया, वो बता। कंसेप्चुअल लेवल बोलता क्या स्टोर किया रे उधर, उतना ही बता। तो ये फर्क रहा। गॉट द पॉइंट? यस सर। और अभी और एक लेवल ऊपर चले गए, तो अलग अलग यूजर है, हर एक डिपार्टमेंट के यूजर कैटेगरीज है, अलग अलग रोल्स क्रिएट करके रखे। वो बोलते हैं भाई मुझे पूरा का पूरा डेटा मत बता, मुझे जितना लगता है उतना ही बता। तो उन्हें व्यू कहा जाता है, उनका व्यू है यार, उनके हिसाब से व्यू क्रिएट करो। तो ये जो कम्युनिटी है, एंड यूजर कम्युनिटी, दे बेसिकली ओके, उनका जो व्यू होता है, उनका जो लेवल है, द लेवल दे आर इंटरेक्टिंग विद, that is called as an external level. How many levels we are talking about?
physical level, conceptual level, and external level. Got the point? Yes, sir. Yes. और ये लेवल के बीच में जो मैपिंग है, मैपिंग, उसे मैपिंग उसे मैपिंग ही कहते हैं यार। अभी मैपिंग क्या बोलूं मैं। ये जो आपको कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ, ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन कंसेप्चुअल और फिजिकल के बीच में, तो मैं उसे कंसेप्चुअल इंटरनल या कंसेप्चुअल फिजिकल मैपिंग कहूंगा। और मैपिंग का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। मैपिंग का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन मींस ये कंसेप्चुअल लेवल पे अगर हमने देखा कि वो टेबल है, तो टेबल का ट्रांसफॉर्मेशन फिजिकल लेवल पे जाने के बाद में हमें डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो जाएगा। सो मैपिंग का मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन। गेटिंग दिस? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैपिंग भी उनके बीच में मौजूद ही होते हैं, दे आर एग्जिस्टिंग। So this is how the three-level architecture will look like. Very common question asked. Okay, draw and explain three-level architecture or ANSI Spark three-level architecture. Very common question. Okay, in this. और इसका सारा डिस्क्रिप्शन जो मैंने कहा ना, व्हाट पे फोकस है, ये सब मैंने लिखा है। So what I feel is that okay, instead of now going ahead today, I want इतना ही डिस्कस जो हमने किया है, that is more than sufficient. I want you to please go through this when you are coming for the next session, and next session will complete the remaining part of the first topic as at the earliest, and we'll start with, and you also think on this component. I can also directly start with relational model also, because anyhow you'll be doing SQL queries in your lab sessions. So there is one very interesting conceptual model which comes in form of an topic number 2, which is an ER model, entity relationship model. So if you don't want me to directly touch to an SQL, well and good, पहले वो ER मॉडल वगैरह निपटा लेंगे, फिर SQL के पास जा सकते हैं, कैसा भी चलेगा। ऑर्डर उतना सिग्निफिकेंट नहीं, थोड़ी मेरी मेरी एनर्जी ज्यादा लगेगी, लेकिन वो लिबर्टी वी एंजॉय। ओके, सो आई थिंक sufficient as far as today's session is concerned. What I do, you please hold on. What I do is that I close and I will just remove all those unwanted strokes, and then we'll create a PDF of this and we'll share with you. Okay, immediately. Just wait. And meanwhile, you can talk to me also. तो ये सब निकाल देता हूँ। ये कुछ इससे कुछ डिलीट ही कर देता, समझना ही नहीं है ओके व्हाई। ओके, दिस आई विल रिमूव। Any specific question from your side? हेलो सर। हाँ हाँ, तो 3 लेवल के थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन था। पूछो ना। तो यू आई सेड कि आप तो पूछ ही सकते हो, पूछो प्लीज, आई विल शो यू। हाँ बोलो। तो मतलब इंटरनल स्कीमा और कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में मेरे को डिफरेंस नहीं समझा सर। ऐसा सोच कि तुझे अगर कार ड्राइविंग सीखनी है, तो तू अपना स्टीयरिंग कंट्रोल तुझे आना चाहिए, जजमेंट आना चाहिए, एंड एक्सेलरेटर एंड क्लच ये कब यूज करना है, ब्रेक कब मारना है, गियर कब चेंज करना है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू हो गया। आर यू गेटिंग दिस? यस सर।
तो ये हो गया ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव, जो ड्राइविंग सीखना चाहता है उसका पर्सपेक्टिव है, उसका व्यू है। अच्छा, जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, उसका व्यू शायद अलग है कि वो, उसका व्यू ऐसा है कि भाई तू स्टीयरिंग जब चेंज करता है तो इंटरनली ओके हाउ मतलब व्हील्स सेम आल्सो स्टफ अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, फिजिकल में कॉम्प्लेक्स। ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, उसमें कम, फिर कम होते जाता है कॉम्प्लेक्सिटी। फैंटास्टिक, नीचे जाओगे तो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, एंड यूजर के ओर जाओगे तो उसका लाइफ सिंपल कंफर्टेबल लगना चाहिए, ये सब। अच्छा। और अभी और एक चीज तूने पूछी है, इसलिए फिजिकल लेवल पे ज्यादा डिटेल्स है, टेक्निकल डिटेल्स। वो फिजिकल लेवल पे आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा कि ये टेबल को मेमोरी में डालने के लिए ये डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया गया। अगर ये टेबल का डेटा फेच करना है, वापस खींच के निकालना है, एप्लीकेशन को प्रोवाइड करना है, तो उसका एक्सेस मैकेनिज्म ये है, सिक्वेंशियल एक्सेस है, हैशिंग यूज किया है। आर यू गेटिंग दिस? ये सारे डिटेल्स तुझे फिजिकल लेवल पे, हाउ, फोकस उसका हाउ है। यस सर। और कंसेप्चुअल लेवल पे यू स्टिल डील विद द एंटायर डेटाबेस। अब जितने भी टेबल्स तेरे पड़े हैं वो डेटाबेस में, सारे सारे ऑल ऑफ देम दे आर रिगार्डेड एज बिलोंगिंग टू द कंसेप्चुअल स्कीमा। लेकिन तुझे अभी ना डिटेल्स ज्यादा नहीं दिख रहे, तुझे टेबल के फॉर्म में दिख रहा है, रिलेशंस के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। टेबल का मतलब रिलेशन ऐसा कहा जाता है। तो फोकस किस पे है? व्हाट डेटा, कितने टेबल्स है, उनका नाम क्या है, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो फोकस थोड़ा सा हल्का हो गया, चेंज हो गया। और ऊपर चला जाएगा तो वो तो एंड यूजर पर्सपेक्टिव बोलता है, यार मुझे पूरा डेटा एक्सेस मत दे। बरोबर है ना? हाँ सर, समझ गया। तो ऐसा वो 3 लेवल आर्किटेक्चर है। तो ठीक है, मैं अभी इसका एक पीडीएफ बनाता हूँ फटाक से। Sir, can you please tell the mark distribution of each chapter? My experience, okay, my experience is ये फर्स्ट टॉपिक जो है ना, तो फर्स्ट टॉपिक will have something around, I believe, 10 8 to 10 marks. Got the point? Okay, sir. Then Abhi, you are asking me about only this topic, I believe. Yeah, you want me to comment on the entire stuff. Yes, sir. Second topic जो है, which is ER model. ER model will have roughly speaking 15 marks, roughly speaking. उसके बाद में रिलेशनल मॉडल आता है, व्हाट द पॉइंट, और सब रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल मॉडल। और उसके बाद में चौथा टॉपिक आता है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एंड क्वेरी लैंग्वेज, सब सब ओके, उसमें ट्रिगर्स है, व्यूज है, सब कुछ। तो थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक मिला के मुझे लगता है रफली स्पीकिंग नॉट लेस देन not less than 25 marks, 25 to 30 marks. Okay? Yes, sir. और फिर उसके बाद में आता है एक टॉपिक विच इज फॉर डिजाइन, विच इज नॉर्मलाइजेशन। एक्चुअली फोकस पूरा एक समथिंग कॉल्ड एज ए नॉर्मलाइजेशन है, टॉपिक नंबर 5। उसका भी वेटेज रफली स्पीकिंग 15-20 मार्क्स का होता है। और लास्ट टॉपिक जो है ट्रांजैक्शन, रिकवरी, कॉन्करेंसी, ये सब कुछ जो है, फिर बाद में उसमें सिक्योरिटी भी आ गए मेजर्स। तो ये भी एक रफली स्पीकिंग 20 मार्क का है। तो थोड़ा प्रिसाइजली अपना जो EQ GQ मिलेगा ना आपको अभी, दे विल बी डेफिनेटली ओके, वी विल बी शेयरिंग दिस टू यू। उसमें आपको वेटेज वगैरह सब कुछ लिखा है, आपको मिलेगा वो वेटेज, डोंट वरी। Yes, sir. और मैं तो कहूँ कि अभी ये वेटेज वगैरह इट्स गुड फॉर यू टू स्कोर, but also enjoy these sessions, and will be very useful. This course is absolutely useful from your job perspective and everything. Okay, so that way also this
is good. Okay, ठीक है, तो I'll share this with you. Please let me know ये open हो रहा है तुम्हारे side में, and are you able to go through it? Will you please do that favor to me? Check करो open हो रहा है. Hi guys. Yes, sir. मिल गया? Yes, sir. Okay. चलो. Yes, ठीक sir. आहे then. Thank you very much. Thank Bye you, bye. sir. Good night. आणि पुढच्या you, वेळेस sir. भेटू मग. Thank you. Thank you. Yeah. वैभव येस सर एंड करू कर जाऊ दे आज एंड कर. ओके ओके ठीक आहे चल चालेल बाय. गुड नाईट. चल. थँक्यू. सर गुड नाईट सर या या.